So in this video, we'll be solving this part 2 of advanced illustrations. Okay. Now let's look at the first question. Right. What's given? A thin non-conducting ring of radius r has a linear charge density lambda, varying as lambda is equal to lambda naught cos phi. Okay, where lambda naught is a positive constant, phi is the azimuthal angle. यहाँ पे दिख सकता है. ठीक है. Calculate the magnitude of electric field strength at the center of the ring and on the axis of the ring as a function of distance x from its center. All right. Now you can clearly see कि इसका इधर अगर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, इफ आई सिलेक्ट एन एलिमेंट हियर, ये एक एलिमेंट ले लेता हूँ, I'll select some other color of it, let's say रेड कलर यूज किया, ये यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ. ठीक है. Now this particular element is subtending an angle d phi. यहाँ पे it is subtending an angle d phi. ओके. तो इसका लेंथ कितना होगा? लेंथ इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर डी फाई. क्या होगा? आर डी फाई इज गोइंग टू बी द लेंथ. सो व्हाट इज द चार्ज ऑन इट? लैम्डा इनटू आर डी फाई. ठीक है, दिस इज द चार्ज ऑन इट. डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू आर डी फाई. नाउ दिस एक्ट्स लाइक अ पॉइंट चार्ज. सो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field due to a point charge would be in this direction, right? Just a moment. Would be in this direction. Let's call this dE vector. Okay, this is dE vector, field due to that small element. Now for reference, I'm going to draw two lines. This one, and you already have the horizontal line, right? Now what is this angle? Since this is phi, this angle should be phi. Okay. अब ये जो DE है, इस DE के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस DE. वन वुड बी along this direction and the other would be along this direction. Okay, so let's call them, इसको DEX मान लेते हैं and this is DEY. Okay, assuming that this is the X direction and this is the Y direction. Okay, so let's define DE first. What is DE? DE is the field due to a point charge, single point charge. So it should be K times dQ over R square. In this particular case, K is 1 over 4 pi epsilon naught. ये तो constant है. Multiplied by what is dQ? dQ lambda into R d phi divided by R square. R is the distance between the point and the element या point charge. तो point charge और element के बीच का जो दूरी था, ये यहाँ पे इस point के बीच का जो दूरी है वो that is capital R. So ये R squared हो गया. So what do we have? This is lambda d phi by 4 pi epsilon naught R. That is the electric field due to that element, right? Now since we do not, देखो ये हर element के हिसाब से ये DE vector का direction change होगा. So we have to evaluate DEX and DEY, मतलब EX and EY separately. ठीक है. तो EX, what is EX? EX is going to be equal to integral DEX, which is integral DE cos theta, DE cos theta. And acha, by the way, what is lambda? Lambda
here is lambda naught cos phi, so I should write that as well. इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, lambda naught cos phi d phi by 4 pi epsilon naught r. Okay, now तो इधर अभी मैं वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है. सॉरी, दिस इज नॉट cos थीटा, दिस इज cos phi, दिस इज cos phi, राइट. तो इसका इधर ये क्या आ जाएगा, देखो, दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रल लैम्डा नॉट cos phi cos स्क्वायर phi हो जाएगा, cos स्क्वायर्ड phi d phi by 4 pi epsilon naught times r. Okay, and ये दिस phi किधर से किधर इंटीग्रेट होगा, दिस phi वुड इसका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 to 2 pi फॉर द होल रिंग. इसका इंटीग्रेशन वुड बी फ्रॉम 0 to 2 pi. Okay, now what about y component of the integration? It would be integral dey, which is integral de sin phi, sorry, de sin phi, which is इंटीग्रल लैम्डा नॉट, देखो sin phi cos phi हो जाएगा, sin phi cos phi d phi by 4 pi epsilon naught r from again 0 to 2 pi. Okay, now इसका इंटीग्रल्स देखते हैं. नाउ इफ यू जस्ट लुक एट ex, ठीक है, या ey पहले देख लेते हैं, इजियर वन, ey. तो ey में देखो क्या क्या कांस्टेंट्स बाहर आ गया, लैम्डा नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाहर आ गया, और अंदर देखो क्या आएगा, sin phi cos phi. तो sin phi cos phi को क्या लिख सकते हैं, sin 2 phi by 2 लिख सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. तो आई एम गोइंग टू चेंज दिस 4 to 8, इसको 8 कर देता हूं, एंड दिस बिकम्स इंटीग्रल sin 2 phi d phi, एंड इसका from where to where, 0 to 2 pi, and sin 2 phi from 0 to 2 pi is ये फन फुल साइकिल कंप्लीट हो गया. तो इनफैक्ट इन दिस केस 2 साइकिल्स वुड बी देयर, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. so there is no y component of electric field. ठीक है, if you talk about x component of electric field, तो x component ex में देखो अगेन क्या क्या कांस्टेंट्स बाहर आ जा सकता है, लैम्डा नॉट बाय 4 pi epsilon naught r, एंड इसमें इंटीग्रल cos square phi d phi from 0 to 2 pi. Now this won't be 0, क्योंकि if you think about it, cos square phi का ग्राफ किधर रहता है, it is on the first, मतलब टॉप क्वाड्रेंट्स ना, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स में रहता है, तो दिस वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, नाउ cos square phi का इंटीग्रेशन कैसा रहता है, इफ यू रिमेंबर cos square phi का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल cos square phi d phi is going to be equal to 5 by 2 plus sin 2 phi by 4. ये होता है इंटीग्रेशन प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है. ठीक है, तो मैं बेसिक मैथ में करवाया गया है ये चीज. नाउ इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 5 करोगे, लोअर लिमिट पुट करे तो पूरा 0 हो गया, देख सकते हैं. एंड व्हेन यू प्लग इन द अपर लिमिट, व्हाट डू यू गेट, यू कैन सी दैट कि ये 2 पाई इधर पुट करोगे, फर्स्ट टर्म में पाई रह जाएगा, एंड सेकंड टर्म पे sin 4 pi is again 0. So this integration would turn out to be just pi. ठीक है, so इसका वैल्यू क्या रहेगा, just pi, and hence what can we conclude, since there is no ey, you can say that E is simply equal to ex, and which is equal to लैम्डा नॉट बाय, वो पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट r.
Okay, so that is your answer for the first part. This is part A ka calculation. All right, I hope you understood this. Okay, now in the second part we have to calculate the electric field on the axis of the ring as a function of distance x from its center. So yeah, let's say this is our ring. I'm going to draw a 3D diagram, and this is our x-axis, y-axis, and this is our z-axis. Okay, you're supposed to calculate the electric field at this point P. ये point पे calculate करना है, and it is given that कि ये जो distance है, this particular distance is x. Okay, this distance is x. Now we are going to select the similar element हम लोग similar select कर लेते हैं. Okay, now by the way I just mentioned that this is x-axis, y-axis, and this is the z-axis. Okay, don't get confused. मैंने z-axis पे रखा है इसको. अगर तुमको इसमें थोड़ा if you want me to keep this on the x-axis, we can do that as well, but I think it's fine. ये distance है ये x, ठीक है, so no worries there. Okay, now अभी इधर मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इधर एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे. ये एक एलिमेंट हो गया यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. ओके, दिस इज आवर एलिमेंट राइट नाउ. नाउ दिस एलिमेंट आई गेस आई डोंट नीड टू से कि इसका चार्ज वगैरह क्या रहेगा. इट्स चार्ज इज गोइंग टू बी डी क्यू. Sorry, we'll use another color. dq is going to be equal to lambda lambda into rd phi, right? rd phi. Okay, अब इसके अब देखो इसका what I'm going to use here is vector form of electric field. ठीक है, तो vector form of electric field कैसे लिखते हैं अपने? इट इज ई वेक्टर या फिर जस्ट डी ई वेक्टर. इसके वजह से अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा. इफ आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस, ये देखो, ये दिस इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी समवेयर हियर ना. एक थोड़ा 3D डायग्राम इमेजिन करना पड़ेगा तुमको, ठीक है. सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड DE. Okay, this is a 3-dimensional diagram, quite difficult to imagine. Now ये देखो इधर से ये कितना एंगल है, इसको अगर मैं फाई ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई. ठीक है, that's the basis of writing dq is equal to lambda r d phi. Okay, अब इसको इसका भी देखो. now I'm going to write the this form. क्या बोलते हैं इसको? I'm going to write this again. wait, इसको ये डी क्यू कितना रहने वाला, डी क्यू is going to be equal to lambda r d phi. Okay, now what is the vector form of electric field equation या Coulomb's law यूज करके? ये dE वेक्टर है. so dE vector would be what? K times dq, that is fine, divided by position vector of the point minus position vector of the charge, तो whole cube into position vector of point minus position vector of charge. ये रहेगा, राइट? हमने ये ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है, इसके बारे में.
तो अब इसको देखो, अभी वी नीड टू डिफाइन ईच वन ऑफ दिस टर्म्स, ठीक है, आर पी क्या है, आर क्यू क्या है, सो लेट्स डू दैट. तो आर पी, position vector of the point, is quite simple. rp is simply x k cap. देख सकते हैं, इट इज x इंटू k कैप है, x z एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है. एंड व्हाट इज आर क्यू, चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है, इट इज गोइंग टू बी r cos phi I cap प्लस r sin phi j cap. अगर तुम इधर भी देख लो, इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस हियर जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस. अगर मैंने एलिमेंट यहाँ ड्रॉ किया होता, दिस वन, इफ दिस हैड बीन माय एलिमेंट, देन यू कैन सी दैट कि ये जो डिस्टेंस है, ये दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ये कितना होता है, इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना रहता है ये डिस्टेंस. दिस वुड हैव बीन r cos phi एंड दिस वुड हैव बीन r sin phi. ओके, तो इसलिए मैंने ये आर क्यू, चार्ज का पोजीशन जो है, ऐसा लिखा. ऑलराइट, नाउ अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, यू डोंट हैव टू थिंक मच. इसका जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर पी माइनस आर क्यू, यू डोंट हैव टू राइट दिस. ये इक्वेशंस वगैरह लिख के करके कोई फायदा करने का कोई जरूरत नहीं है. यू कुड जस्ट लुक एट द ज्योमेट्री हियर. इन दिस केस इट इज, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. यू विल गेट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. सो दैट्स गोइंग टू बी रूट ऑफ r squared plus x squared. All right, now तो लेट्स जस्ट प्लग दिस इन इस इक्वेशन में. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, k डी क्यू, या फिर एंड वी शुड आल्सो आई थिंक राइट द वैल्यूज ऑफ डी क्यू. डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट, ये यू कैन सी दैट लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता, लैम्डा नॉट कॉस थीटा लिख दे रहा हूँ, सॉरी, कॉस फाई आर डी फाई. ओके, तो लैम्डा नॉट आर cos phi डी फाई, डी क्यू का वैल्यू हो गया, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर्ड रेज टू 3/2, राइट. एंड इसके अंदर क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्स के कैप प्लस आर cos phi I cap प्लस r sin phi j cap. ऑलराइट, तो इस तरह से मिलने वाला है. एंड व्हाट्स नेक्स्ट, तो अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ dE. नाउ whatever constants you can find, just bring them out. तो इसमें से देखो क्या बाहर निकाल सकता हूँ, इसमें से k बाहर आ गया, k को 1/4 pi epsilon naught लिख सकता है. I'll write that later on. k lambda naught as a constant, r देख सॉरी ये r as it is रहेगा, and then ये denominator भी constant है, r square plus x square by 3/2. ओके, एंड देन अब इंडिविजुअल इंटीग्रेशंस के लिए अगर देखें तो इंडिविजुअल, लेट्स लुक एट द इंडिविजुअल इंटीग्रेशंस. तो एक सेकंड, व्हेन आई हैव जस्ट मेड अ मिस्टेक हियर, दिस शुड हैव बीन rp माइनस rq है, तो दिस बोथ दीस साइंस वुड बी नेगेटिव, ठीक है, माइनस, ये दोनों माइनस रहेगा. ऑलराइट, तो हाँ, अब इधर देखो क्या रहेगा, x अगेन इज अ कांस्टेंट, सो आई कैन ब्रिंग दैट आउट. तो देखो इंटीग्रल cos phi डी फाई हो जाएगा फ्रॉम, ऑफ कोर्स लिमिट इज 0 to 2 पाई, क्योंकि पूरे इसके लिए हम लोग को चाहिए फॉर द होल रिंग, ठीक है, माइनस, अब इसमें क्या बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, इंटीग्रल cos phi क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर्ड फाई डी फाई फ्रॉम 0 to 2 पाई, देन माइनस आर अगेन बाहर,
write it here, minus r integral 0 to 2 pi sin phi, sorry sin phi cos phi आएगा, sin phi times cos phi times d phi. ठीक है, this is how you're going to integrate this. Now you can clearly see here, that when you integrate this one, ये इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि when you integrate this one, this whole thing is going to be 0. ये पूरा गया, ये गया, ठीक है. And this one again, integral cos phi d phi from 0 to 2 pi, again full cycle, तो ये भी क्या हो गया, 0. okay, but this particular term, ये टर्म कितना आ जाता था, ये हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था इसका फर्स्ट पार्ट में कि दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू पाई. यू कैन सी दैट. अच्छा, बाय द वे आई शुड हैव रिटन दी मतलब यूनिट वेक्टर्स. ये k कैप, इधर क्या आएगा i कैप, और इधर क्या आएगा j कैप. ठीक है, अब इसमें तो अभी देख सकते हो कि k कैप भी वैनिश हो गया, j कैप भी वैनिश हो गया, बचा क्या, i कैप. नाउ यू शुड सी दैट देयर इज अ नेगेटिव साइन एज वेल, तो उसको भी इंक्लूड करके अगर लिखूं तो व्हाट डू आई हैव, e vector is equal to minus नेगेटिव, ये बाहर आ गया, एंड आई कुड राइट k रहने देते हैं पहले, k पाई lambda नॉट r squared by r square plus x squared raised to 3/2 ये i cap. ठीक है, so that is your answer. Alright, now इसमें एक और लाइन लिखा है कि we need to evaluate, investigate what is obtained when x is very large as compared to r. So you can see that when x is very large as compared to r, you could just write this x, if x is very large as compared to r square plus x square को क्या लिख सकते हैं, x square लिख सकते हैं. So e vector becomes k minus k pi lambda naught r squared by ये क्या आ जाएगा, r square plus x square के बदले ये क्या आ जाएगा, x cube आ जाएगा i cap. ठीक है, ना इसका एक सिग्निफिकेंस आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दिस सून, अभी बताऊंगा इसका क्या मीनिंग है करके. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. नाउ यू शुड सी दैट कि ये माइनस आई कैप के डायरेक्शन में. ठीक है, मतलब इधर इफ आई ड्रॉ इट हियर, दिस इज पॉइंट P. इस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इस in this direction, ये देखो, use this color, in this direction, negative x axis के लो, इस तरफ है. This is our net electric field. All right, so I hope you understood this one. All right, so see the significance of this is कि ये जो lambda is equal to क्या, lambda naught cos phi है, तो in the first and fourth quadrant the charge is going to be positive, and in the second and third quadrant the charge is going to be negative, and the net charge on the ring is going to be 0. Now since it is cos phi, at phi is equal to 0 charge would be maximum. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा इस एंड पे, सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा, and at these 2 points the charge density is going to be 0. Okay, now you can see clearly that this becomes a dipole, and ये net positive charge का जो positive center है उसको यहाँ पे मान सकता हूँ plus q लेके, and similarly net negative charge का यहाँ पे मान सकता हूँ. So this becomes a dipole, and इसके center पे easily अपने देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है. ओके, तो सेंटर वाला हमने देख लिया कि इस तरह से है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट वो किसी और पॉइंट पे, तो एक रैंडम पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सो लेट्स इमेजिन दिस इन 3D.
तो इस पे देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर हाफ इज नेगेटिवली चार्ज, एंड ये इसी चीज को मैंने 3D में ड्रॉ किया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, this distance right here is x, this distance is x। now ये देख सकते हो कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड है, तो डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड मतलब इट शुड लुक लाइक दिस। डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड मतलब इट वुड बी opposite to the dipole moment, right? I'll draw it using a thicker arrow। तो इसीलिए देख सकते हैं कि अगर ये x एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो यहाँ पे जो अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो नेगेटिव माइनस आई कैप के डायरेक्शन में था। ओके, तो दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। नाउ इसमें एक और जो पार्ट था कि दिस x should be very large as compared to r, so what happens in that case? okay, so उसमें इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था अपने पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड वाज E is equal to minus lambda naught r square या k lambda naught r square pi by r square plus x square raised to 3/2, ये I cap है ना। दिस वाज आवर फील्ड एंड इसमें अगर जैसे हमने x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया? इट इज माइनस k lambda naught r square pi divided by x cube I cap। okay, now here's the thing, if you try to calculate the dipole moment of this, इसका dipole moment अगर calculate करना चाहोगे, what you're going to get is कि इस चीज का जो dipole moment है p is going to be equal to lambda naught r square pi। I think I don't have to show you how that's done। okay, इसका जो dipole moment, if I just write the and its direction is of course which direction? positive, negative, positive x axis के अलग, तो ये I cap हो जाएगा। ठीक है, if I plug that in, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या हो जाएगा? this is going to be minus k p vector by x cube, which is field due to a dipole at the equatorial point for a small dipole। ठीक है, so ये क्या है? this is our dipole moment। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं तो अपने को पता ही है। एंड ये क्या हो गया? सिमिलर टू फील्ड ड्यू टू स्मॉल डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंप्लीट क्वेश्चन। इसमें काफी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, so next question, a physicist studying the properties of ions in the upper atmosphere wishes to construct an apparatus having the following characteristics. In the setup used, an electric field is applied such that a beam of ions having charge q and mass m, okay, this is the ion right here, and with initial velocity v I cap, ये v velocity से आ रहा है, is turned through an angle 90 degree such that each ion undergoes a displacement r I cap plus r j cap। ये यहाँ से exit करना है। ठीक है, the ions enter a chamber as shown in figure and leave through the exit port with the same speed they had when they entered the chamber। मतलब the speed is not changing। ठीक है, only the direction is changing। all right, and the
electric field acting in the ions have constant magnitude. That's the key point here. इधर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. नाउ सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, वो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स को बताया नहीं है यहाँ पे. एंड hence it is radial. Here's the key point, radial field. Okay, for the first case calculate the magnitude of electric field. And ये पूछा है second part में, if the field is produced by two flat plates and is uniform in direction, what should be the field? What should be the field? Now here's the thing, let's draw a vector diagram first. एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ just so that you understand. अच्छा, उससे पहली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, फोर्स. और वो फोर्स कितना रहने वाला, इट इज गोइंग टू बी QE. एंड इसके वजह से एक्सेलरेशन रहेगा विच इज इक्वल टू QE/m. ऑलराइट, नाउ इन द फर्स्ट केस ये बोला गया कि रेडियल फील्ड है. व्हाट डज दैट मीन? रेडियल फील्ड का मीनिंग ये हुआ कि अगर पार्टिकल यहां पे है तो, एक सेकेंड, पार्टिकल अगर यहां पे है तो उस पे फोर्स किधर लगने वाला है? उस पे फोर्स लगेगा ऐसे. ठीक है, एंड जब पार्टिकल यहां रहेगा तब उस पे फोर्स किधर लगने वाला है? ऐसे. यू कैन सी दैट ये दे आर ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस रीजन. और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? R. बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि ये R रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा होगा, है ना. नाउ दिस इज क्वाइट सिंपल कि इसमें क्या लिख सकता हूं मैं कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड. तो इसका स्पीड इज फिक्स्ड, ये v स्पीड से ही मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस पार्टिकल का ये ट्रैक है एंड इस पार्टिकल पे क्या फोर्स लगेगा? कौन फोर्स लगाएगा? बाय द वे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा लाइक दिस. एंड वो कितना होने वाला है? Q टाइम्स E होने वाला है. ठीक है, Q टाइम्स E. एंड ये E का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है. एंड इसका जो एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन है? इसका रेडियल एक्सेलरेशन. तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा? v² R होगा. v स्पीड है ना इसका, ये v स्पीड से जा रहा है. तो इधर अपने सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? इट्स क्वाइट सिंपल नाउ कि ये जो मैंने ऊपर का लिखा, दैट आई जस्ट रियलाइज दैट इट हैज टू बी फॉर द सेकंड केस, नॉट फॉर द फर्स्ट केस. ठीक है, सिंस वो फर्स्ट केस में E वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में सेम रहेगा. ओके, हियर इन द फर्स्ट केस द डायरेक्शन इज नॉट fixed, it is changing, not a constant field. Okay, constant magnitude field है but not a constant electric field. Now anyway, तो इसका इधर क्या लिख सकता हूँ कि this QE is going to supply the centripetal force. तो ये क्या हो जाएगा? mv²/r. pretty simple. यहाँ से देखो E कितना आ गया? E is equal to mv²/qr. Okay, E is equal to mv²/qr. That is the first case. Now if I talk about the next case, second case के बारे में बात करें तो second case में you can see that I need to use this logic. ये वाला लॉजिक यूज करता हूं. तो इसके हिसाब से इसका सिग्निफिकेंस क्या देखना? What is the initial velocity vector? Initial velocity vector is along this direction. ये initial velocity vector है. And what is the final velocity vector? It is vertical, है ना, इस तरह से. तो what would be the change in velocity vector? ये देख सकते हैं. What are these things? This is the change in velocity vector. ये क्या है अपना?
इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर. ओके, एंड चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग ही, क्योंकि सी दिस इज यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन. सेकंड केस में यूनिफॉर्म डायरेक्शन बोला है, तो डायरेक्शन भी फिक्स्ड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में मतलब फील्ड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म फील्ड. यूनिफॉर्म फील्ड मतलब ई कांस्टेंट तो ए कांस्टेंट, देख सकते हैं ई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट तो ए कांस्टेंट हो गया, समझ गए. एंड ए का डायरेक्शन क्या रहेगा, डेल्टा वी के अलोंग रहेगा. तो आई कैन से दैट ए का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इट इज अलोंग, सॉरी, ए का डायरेक्शन इस तरफ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा. ओके, तो इसको अभी कैसे लिख सकता हूं, देखो इलेक्ट, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट होगा, तो आई कैन यूज दी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. आई गॉट द डायरेक्शन आल्सो, तो मुझे दो कंपोनेंट्स लेके करना पड़ेगा. ओके, तो लेट्स लुक एट द एक्स कंपोनेंट. तो एक्स कंपोनेंट पे बात करें, एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला लगाता हूं. व्हाट इज v स्क्वायर्ड, v स्क्वायर्ड मतलब x component of velocity is 0. You can see that ki finally the velocity is along y axis, so this is going to be 0. I'll write this ये x vx, ये ux, and इसको क्या लिख सकता हूँ, I can write it as ax into डेल्टा x लिख सकता हूँ. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0 क्योंकि फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग 0 है, and initial velocity along the x ही है, which is equal to v squared plus 2 times what is ax. Ax is going to be equal to q into ex by m times what is delta x. इधर देखो ये x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, r. देखो फाइनल x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, r, और इनिशियली ओरिजिन से मूव किया, तो ये डेल्टा x इज गोइंग टू बी r. ठीक है, तो यहां से ex का वैल्यू क्या आ गया, ex is equal to mv squared by एक सेकेंड, कुछ ओके, हाँ समझ गया. ex is equal to minus mv squared by 2qr. now what does this minus signify, ये नेगेटिव सिंबल क्या सिग्निफाई कर रहा है, नेगेटिव सिंबल तो ये सिग्निफाई कर रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ex का डायरेक्शन ऐसा है, ex का डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है. ठीक है, ये है ना ex का डायरेक्शन. नाउ व्हाट अबाउट ey, तो y कंपोनेंट अगर कैलकुलेट करूं तो if I talk about y component, तो vy squared is equal to uy squared plus 2ay into delta y. ठीक है, तो vy कितना है, it is v squared is equal to u initially velocity is along x axis, तो ये 0 हो जाएगा, plus 2 into q into ey by m into delta y is again r. देख सकते हैं कि फाइनल r y कोऑर्डिनेट इज r एंड इनिशियली इट वाज एट द ओरिजिन. ठीक है, तो यहां से ey कितना आ गया, ey इज इक्वल टू mv स्क्वायर्ड, आई गेस मैंने मिस्टेक नहीं किया यहाँ पे, mv स्क्वायर्ड बाय 2qr. ओके, सो नाउ इट्स प्रीटी सिंपल. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ey ex मिल गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू, net electric field is going to be equal to root of ex squared plus ey squared. ठीक है, इधर से अपने को e का वैल्यू मिल जाएगा mv squared by root 2qr. okay, so that is your question number 2 का second part and first part. I hope you understood this. Okay, so in this question, a thin rigid insulating ring of radius r and mass m has a very small gap of length l. ये देख सकते हैं कि this is a small gap l, ये l
लेंथ का गैप है, ओके, एंड carries a uniformly distributed charge q. Is where total charge is q. All right. The ring is at rest in free space and a uniform electric field E in the plane of the ring. ठीक है, and parallel to the gap is switched on. Now when this is switched on, इस पूरे रिंग पे फोर्सेस लगेगा हर छोटे छोटे एलिमेंट पे. Find the maximum angular speed of the ring in the subsequent motion. Now देखो इसमें इसको देखो अभी कैसे व्हाट्स हैपनिंग हियर, लेट्स लुक एट दैट. ओके, तो इसमें अगर मैं ये सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करता हूँ एंड आई यू नो इस पे अगर मैं इसका एलिमेंट्स ड्रॉ करूं तो लेट्स लुक एट वन पर्टिकुलर एलिमेंट. लेट्स लुक एट दिस एलिमेंट. ठीक है, दिस वन. तो अगर इस एलिमेंट पे के बारे में बात करो तो इस एलिमेंट पे देखो क्या लगने वाला, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ऐसे अलोंग दिस, है ना. एंड इफ यू लुक एट दिस, ये पूरे चीज पे, ये जो पूरे रिंग पे अगर ये एलिमेंट पे ऐसा फोर्स लगा, इफ आई कॉल दिस फोर्स एफ, ठीक है, तो इसके जस्ट डायमेट्रिकली, सॉरी नॉट डायमेट्रिकली ऑपोजिट, मतलब उसके जस्ट ऑपोजिट अगर तुम एक और एलिमेंट सिलेक्ट करो, लेट्स से कि ये मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ से ये इतने दूरी पे इधर एक एलिमेंट ले लेता हूँ, यूज सम अदर कलर. ये देखो इधर से इधर, ये यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट ले लो, तो उस पे भी फोर्स किधर लग रहा है, उस पे भी फोर्स देखो किधर लग रहा है, ऐसे. ठीक है, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट उस पे भी फोर्स कितना लगेगा, सेम. अच्छा, आई शुड राइट डी एफ क्योंकि दिस इज ऑन अ स्मॉल एलिमेंट. ये फोर्स भी कितना रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी डी एफ ही रहेगा ये फोर्स. ऑलराइट, जस्ट सो दैट यू गेट इट कि मैं एग्जैक्टली क्या रहा हूँ, कि यहाँ पे जो देख सकते हो कि अगर ये इसका सेंटर है रिंग का, तो ये जो एलिमेंट है दिस, देख सकते हो कि ये यहाँ से सेम एंगल्स बना रहा है, यहाँ से सेम एंगल बना रहा है, थीटा थीटा, देख सकते हैं. तो ये दोनों पे इधर इससे 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 देखो क्या हो गया कि इस पॉइंट सेंटर ओ के अबाउट अबाउट एक सेकंड, I can write about O फोर्स. देखो किस तरफ लगेगा, हर एलिमेंट पे फोर्स लेफ्ट साइड चल रहा है. एक चीज का तो गारंटी हो गया ना यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर रॉड है, ये सॉरी रिंग है, दिस रिंग इज गोइंग टू एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन. इस रिंग का जो एक्सेलरेशन होने वाला है मोमेंटरली एटलीस्ट, इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन ए. समझ गए ना, क्योंकि डीएफ के सारे फोर्सेस का डायरेक्शन राइट साइड की तरफ होगा, लेफ्ट साइड मतलब इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. राइट नाउ, तो ये तो एक्सेलरेट पूरा इस तरफ करेगा क्योंकि सब्सिक्वेंट मोशन बोला ना, तो आई एम जस्ट एनालाइजिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ मोशन दिस इज गोइंग टू बी. तो अबाउट ओ, तो नेट फोर्स आई कैन राइट, नेट फोर्स is, as you can see, is not zero. ठीक है, and you can say that and is same for all elements. Okay, in the same direction. Now let's talk about torque. ठीक है, टॉर्क के बारे में बात करते हैं. तो टॉर्क के बारे में देखो तो अबाउट ओ इफ यू लुक एट इट, इस सेंटर के अबाउट देखो, अभी ये दोनों मैंने एलिमेंट लिया फोर्स समझाने के लिए. ठीक है, तो अगर मैं कोई और एलिमेंट ले लूं, लेट्स से आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट,
ध्यान से देखना हियर, एक सेकंड, यहाँ पे देखो, ओह सॉरी, यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, आई ट्राई टू ओरिएंट इट करेक्टली, ऑलराइट। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ, देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे फोर्स किधर होगा। इनफैक्ट आई कुड हैव जस्ट रिमूव दिस वन, इसको जरूरत ही नहीं था, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जरूरत ही नहीं था, सॉरी। इनफैक्ट ये एक एलिमेंट लेता तो देखो कैसा रहता, ये इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स वुड बी इन दिस डायरेक्शन, राइट, df. So can you see that the torque due to this one, due to this particular element is in this direction and इस particular element की वजह से इसके opposite है, तो these two torques are going to cancel, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, the torque due to each element will cancel except कौन, किसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। यू कैन क्लियरली सी कि इसके ऑपोजिट यहां पे जो एलिमेंट है, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, इसको कुछ और ले ले, रेड कलर ले लेता हूं, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट पे कैंसिल नहीं होगा, इसको कैंसिल करने वाले यहाँ है ही नहीं ना, यहाँ पे देखो नो एलिमेंट, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा रहेगा, अगेन इन दिस, सॉरी, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ रहेगा, एंड ये देख सकते हैं कि इफ आई ड्रॉ दिस पर्टिकुलर लाइन, इस लाइन के अबाउट इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या होने वाला है, इस लाइन के अबाउट इस टॉर्क का डायरेक्शन इस तरफ होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी टाउ, ठीक है, इसके अबाउट। एंड ये क्या है, दिस इज द फोर्स df, okay, and you can see that initially it is perpendicular to it, तो initially it is perpendicular to it, ये एंगल देख सकते हैं, दिस इज 90 एंड ये रेडियस इज r, so no worries there। तो इसके वजह से जो टॉर्क होगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस whole ring is going to have an angular acceleration like this, ऐसा angular acceleration रहेगा like this, okay। तो फोर्स तो हर एलिमेंट पे लग रहा है, लेफ्ट इस नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लग रहा है इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज ओनली ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। इधर लिख देता हूं, एक्सेप्ट द एलिमेंट opposite to the broken end, okay। now तो luckily for us, तो ये by the way ये रिंग कैसे मूव करने वाला है, दिस इज गोइंग टू रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेट, तो मतलब ये क्या होगा, इट इज गोइंग टू परफॉर्म व्हाट, combined translation plus rotation, ठीक है, combined, it is going to rotate as well as translate। Now luckily for us हमें सिर्फ angular speed पूछा है, तो we are only bothered about the rotation, and again rotation का effect is only due to this particular element जो red से मार्क किया है, ठीक है। तो if I just take this element, okay, इसको ध्यान से देखना, I'm going to draw this ring again, यहाँ पे देखो ये रिंग यहाँ पे है,
एंड इतना पार्ट नहीं है, राइट? दिस पार्ट इज नॉट देयर। ओके, अब इसका जो ऑपोजिट है, अब मान लो कि थीटा एंगल रोटेट कर गया ये, लेट्स से कि ये ऑलरेडी थीटा एंगल रोटेट कर दिया। आई एम गोइंग टू ड्रॉ रेफरेंस लाइन हियर। ये इनिशियली ऐसे, this line is perpendicular to electric field. Okay, this particular line is perpendicular to electric field, and मान लो कि this ring has rotated through an angle theta. If this ring has rotated through an angle theta, you can see that कि ये जो element है वो element इधर आ गया होगा, like this, सर element जो broken end इधर आ गया होगा, and the element that we are concerned about is going to be diametrically opposite to it. तो diametrically opposite to it इधर होगा। I'll use red color again. ये ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है, इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा रहेगा, ऐसे, राइट, लाइक दिस। एंड ये जो लाइक आई सेड कि ये थीटा एंगल रोटेट कर गया, ठीक है, लाइक दिस, ये थीटा एंगल ऐसे यहां से यहां रोटेट कर दिया। नाउ इफ आई ट्राई टू एक्सटेंड दिस लाइन, ध्यान से देखना, if I try to extend this line, तो can you see that कि this particular distances are perpendicular। ये अपना क्या हो गया f, ये क्या, this is our r perpendicular torque calculate करने के लिए, which is equal to what, r cos theta, and this is our df force, which is simply what, dq into e, कह सकता हूं, राइट? नाउ तो व्हाट इज दिस dq इक्वल टू, ये dq का वैल्यू कितना वो भी कैलकुलेट करते थे इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे। व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, ये dq कितना है, तो dq इज गोइंग टू बी उतना ही चार्ज होगा जितना इधर नहीं है। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज, q बाय व्हाट इज द टोटल लेंथ, इट इज 2 pi r into what is this length, l, ठीक है, this is going to be dq। okay, you could clearly see l is very very small, तो इसलिए मैंने ये सीधा रिलेशन ले लिया कि q by 2 pi r is the total charge, and sorry, q is the total charge, 2 pi r is the total length of the ring, तो q by 2 pi r charge per unit length into length of the broken part, तो उतना उसका ऑपोजिट उतने ही पार्ट का चार्ज लेना है dq। ऑलराइट, नाउ तो इधर व्हाट इज द टॉर्क, सो व्हाट इज द टॉर्क हियर, तो torque d tau is going to be equal to d tau will be df into r perpendicular। मतलब कितना हो गया देखो, it is going to be, I'll plug in the values, q l by 2 pi r, ये dq हो गया, into इलेक्ट्रिक फील्ड ये df हो गया, मल्टीप्लाइड बाय r cos थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय r cos थीटा, सो दैट इज r d tau। ओके, मतलब क्या लिख सकता हूं, q e l cos थीटा अपॉन 2 पाई। ओके, अब द क्वेश्चन इज कि तुमसे पूछा है कि मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या होगा, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कब होगा। तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड का लॉजिक ये लगा सकते हैं कि ओमेगा मैक्सिमम मतलब अल्फा शुड बी 0। अरे मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट, ओमेगा मैक्सिमम मतलब अल्फा 0, एंड अल्फा कब 0 होगा, जब टाउ 0 होगा। तो टाउ 0 का मतलब कब होगा, व्हेन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज हियर लाइक दिस, जब ये यहां पे तक रोटेट कर जाएगा ना, यहाँ पे,
तो इसको कितना रोटेट करवाना है हमें, π/2। जब ये यहाँ पे रोटेट करेगा देन इट इज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, ओमेगा मैक्सिमम होगा। ऑलराइट, सो व्हाट इज द वर्क डन हियर? तो द वर्क डन राइट नाउ इन दिस केस, वर्क डन का वैल्यू क्या रहेगा? अच्छा, इसमें बस क्या करें, सॉरी वर्क डन बोल रहा हूँ, वी नीड टू यूज व्हाट, वर्क एनर्जी थ्योरम। तुमको बोला है कि रोटेशन में मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालना है, इस टॉर्क के वजह से वर्क डन कैलकुलेट करो, एंड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो क्या रहेगा, वर्क डन is equal to change in kinetic energy. Now you should understand this very very clearly कि यहाँ पे there is acceleration also, ये horizontally भी move कर रहा है, but we are not concerned about it, ठीक है। तो डेल्टा के this is purely due to rotation, work done, rotational work done। तो rotational work done is integral tau d theta, and in this case the tau is this only, ये यही अपना torque है, कौन सा, this is our torque d tau। okay, tau d theta is equal to half I omega squared minus omega 2 squared minus half I omega 1 squared, ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 ये इसका। तो व्हाट इज टाउ डी थीटा? तो इसका देखो क्या आएगा, क्यू ई एल बाई 2 पाई, तो कांस्टेंट है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम वेयर टू वेयर, ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होने वाला है, दिस इज इसका जो इंटीग्रेशन होगा इट विल बी फ्रॉम 0 टू थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, mr² टाइम्स फाइनल ओमेगा विच इज ओमेगा मैक्स, जो अपने को कैलकुलेट करना है, ओमेगा मैक्स का स्क्वायर्ड। यू कैन क्लियरली सी दैट दिस पर्टिकुलर वैल्यू हैज टू बी 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ से अपने को ओमेगा मैक्स का वैल्यू क्या मिला, ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या आ जाएगा, क्यू ई एल बाई mr², क्यू ई एल बाई mr², ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सॉरी, इसमें क्यू ई एल बाई पाई mr² आएगा, mr² पाई, ठीक है। सो आई जस्ट राइट इट अगेन, दिस इज गोइंग टू बी पाई mr² नीचे, दैट्स योर आंसर। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक देयर इज अ थिन रिजिड इंसुलेटिंग रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l एंड हैज अ चार्ज q। इसका जो इस पर्टिकुलर रॉड जो है इसका चार्ज q है और इसके पे मास है m। ओके, एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी u एंटर्स अ टू सेक्शन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देख सकते हैं कि देयर आर टू सेक्शंस, रीजन 1 एंड 2। both the sections are of equal thickness and the thickness is d and जो length of the rod is greater than 2 times, मतलब अगर ये पूरा रॉड अंदर घुस भी जाए तो भी मतलब a part of it would be outside each and have electric fields of same magnitude E। दोनों में electric field का magnitude same है। assume charge distribution to be unaffected by electric fields, इसका charge distribution fix रखना है, uniform fix रखना है, and there is no electromagnetic induction। what should be the minimum velocity u of the rod so that it will completely pass through both the sections, ठीक है। you want to make sure that this exits through this one, complete rod बाहर निकलना चाहिए। okay, so let's calculate that first। so this is our rod, ये rod है, ठीक है। now this particular rod, इसको देखो कैसे मोशन इमेजिन करो,
जब ये यहाँ से एंटर करेगा, रीजन 1 एंटर किया, रीजन 1 एंटर करते करते जब रीजन 2 और 1 के बीच का जो इंटरफेस है वहां तक पहुंचेगा, तब देख सकते हो कि चार्ज इज इंक्रीजिंग इनसाइड रीजन 1। ठीक है, चार्ज इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी बढ़ते जाएगा इस पे, रॉड पे। नाउ जैसे ही यहाँ पे इधर से आगे एंटर करने लगेगा, तो यू कैन सी दैट द चार्ज इनसाइड रीजन 1 इज फिक्स्ड। ठीक है, चार्ज इनसाइड रीजन 1 is fixed while charge inside region 2 is increasing with time. Now this goes on till it reaches this point. Once this reaches point 2, देखो charge inside 1 and charge inside 2 is the same, and there is a part of it which is outside. Now this would go on till it reaches here, this point. ठीक है, यहाँ तक आते आते वो रुक जाएगा। मतलब रुक नहीं जाना, मतलब आई मीन यहाँ तक अगर तुम देखो, यहाँ तक अगर आप पहुंचा दिए इधर तक, इस सिचुएशन तक, इसके बाद इफ इट हैज सम वेलोसिटी, वो देखो कि इन द रीजन 2 में जो फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है, रीजन 1 के जो फोर्स लग रहा है वो दोनों सेम होगा, तो दैट्स गोइंग टू कैंसल आउट, एंड जो एक्स्ट्रा स्पीड की वजह से इट विल कंटिन्यू मूविंग। वंस दिस क्रॉसेस लाइक दिस, एक बार इधर पहुंच गया तो देख सकते हैं रीजन 1 पे जो फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी लेस एज कंपेयर टू रीजन 2 पे जो फोर्स है। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, नाउ अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डू यू सॉल्व दिस? सो लेट्स इमेजिन दिस इज आवर रीजन 1। ठीक है, यू जस्ट लुक एट दिस, ये रीजन 1 को एंटर करने जा रहा है, ये रीजन 1, ये रीजन 2। ओके, नाउ जब रॉड एक सर्टेन डिस्टेंस एंटर कर चुका होगा, एक सर्टेन लेंथ एंटर कर चुका होगा, इतना मान लो लाइक दिस। ठीक है, लेट्स से कि रॉड जो है वो x डिस्टेंस एंटर कर चुका, कितना डिस्टेंस एंटर कर गया, x डिस्टेंस एंटर कर गया, तो कितने चार्ज पे फोर्स लगेगा, इतने चार्ज पे फोर्स लगेगा, एंड व्हाट इज दैट चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ q बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, इस पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किधर लगेगा, इस किस तरफ लगने वाला फोर्स, इधर जो है फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। नाउ लेट्स अस्यूम कि ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। लेट्स अस्यूम कि दिस डिस्प्लेसेस स्लाइटली बाय dx। तो इस पे देखो फोर्स लेफ्ट साइड जा रहा है, फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू, लेट्स कॉल, एक सेकेंड लिखने के बदले I'll just call this Q, Q प्राइम बोल देता, तो ये कितना लगेगा फोर्स इस पे, Q प्राइम टाइम्स E लगेगा, है ना, Q प्राइम टाइम्स E लगेगा। तो इसका जो वर्क डन है, यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो, dw, सॉरी नेगेटिव dw, ये जो dw इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ओके, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो लेट्स कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर वर्क डन इधर से इधर जाते समय। यू शुड रियलाइज कि ये यू स्पीड से आ रहा है, जैसे रीजन 1 में एंटर करता है इट इज एक्सपीरियंसिंग अ रिपल, मतलब एन ऑपोजिट फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, सो इट विल ट्राई टू स्लो डाउन। एक चीज समझना, रीजन 1 इज गोइंग टू ट्राई टू स्लो इट डाउन, स्लो डाउन होगा जब इधर से मूव करेगा, एंड रीजन 2 पे देखो स्पीड के अलोंग रहेगा, तो मतलब ये क्या करने वाला है, इसको स्पीड अप करेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ जो रीजन 2 का इफेक्ट है, इट शुड काउंटर रीजन 1 का इफेक्ट। इफ दैट कैन बी मेड पॉसिबल, तो वो कंप्लीटली बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो अब यहां से इसका वर्क डन देखो कितना रहने वाला है, दिस पर्टिकुलर वर्क डन dw is equal to f dx, मतलब what is this q dash, q dash is going to be charge per unit length q by l times the length x, तो q x by l times e into displacement is dx, and ये साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, this sign is going to be
negative. Okay, so what is the total work done when you integrate this? You can see that either x कहाँ से कहाँ होगा, x is equal to 0 to x is equal to d तक होगा, है ना, d तक इंटीग्रेट करना है इसको. तो ये वर्क डन कितना होने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस क्यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू d, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू ई डी स्क्वायर्ड बाई 2l. तो रॉड जब ये सेकंड जब बीच का इंटरफेस तक पहुंचेगा तब तक इतना वर्क होने वाला है, एंड दैट इज अ रिटार्डिंग वर्क डन. ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, जब वो एंटर कर चुका होगा, यहां से एंटर कर चुका होगा इतना, डोंट नीड दिस हियर. तो जब ये इधर से एंटर कर चुका होगा, लेट्स से कि एक सर्टेन पार्ट अभी रीजन 2 में एंटर कर रहा है ये. ठीक है, ये रीजन 2 में एंटर कर रहा है इस तरह से. तो इस पे देखो कितना कौन कौन कैसा वर्क हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, इसको इधर देखो कितना वर्क हो रहा है इस पे दिस पर्टिकुलर पार्ट, इस पर्टिकुलर पार्ट पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस तरफ. एंड इस पर्टिकुलर पार्ट पे जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ. ठीक है, नाउ ये ज्यादा होगा, ये कंप्लीटली इनसाइड है. ये देखो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कंप्लीटली इनसाइड दिस. ये दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया. तो ये जो इसका वर्क डन होगा, दिस पर्टिकुलर वर्क डन, ये कहां से कहां पहुंचाना है अपने को, दिस रॉड, दिस पर्टिकुलर रॉड, इसको यहां से यहां तक पहुंचाना है. इसको समझ गया ना. जब एक बार यहां से यहां तक पहुंच गया तो दिस पर्टिकुलर वर्क डन, दिस वर्क डन, यहां से जो वर्क डन होगा, इसको अगर मैं W2 लिख दूं और इसको लिख दूं W1, तो what is this W2 equal to? W2 would be same as this one but positive, क्योंकि इस पे देखो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा dx देख सकते हो, एंड बाकी सारा कैलकुलेशन सेम. तो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू W2 is going to be equal to what? Plus QE plus QED squared by 2L. ठीक है, यहां से यहां का तो ये होगा. एंड ये W1 कितना होगा, एक चीज नोटिस करना, हर एलिमेंट इसमें जितना भी एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, लेट्स से ये एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, तो वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, ये पूरा रॉड dx डिस्प्लेस किया तो ये भी dx डिस्प्लेस करेगा. एंड लेट्स से कि ये एलिमेंट में जो चार्ज है उसको dq नाम दे देता हूं, तो W1 कितना रहेगा, देखो इस पे, इस dq पे कितना फोर्स लग रहा है. देखो कि ये dx डिस्प्लेस हुआ, द नेट चार्ज इनसाइड रीजन 1 इज नॉट चेंजिंग. ये रीजन 1 है, ये दिस रीजन 2. रीजन 1 में जितना नेट चार्ज है इट इज नॉट चेंजिंग. सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्क डन W1? W1 is equal to integral f dx, एंड ये देख सकते हो कि दिस पर्टिकुलर वर्क डन इज गोइंग टू बी नेगेटिव, क्योंकि देखो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड, मतलब हाँ लेफ्ट साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है. तो एफ डी एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव. सो आई विल जस्ट राइट इट हियर, इधर ही माइनस लिख देता हूँ, माइनस एफ डी एक्स होगा इंटीग्रल. तो माइनस इंटीग्रल एफ कितना होगा, चार्ज इनटू ये, इस पे अभी कितना, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इफ यू लुक एट इट, इस पे कितना चार्ज है, व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड. ऐसे हर एलिमेंट का सेम डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल चार्ज इनसाइड इज टी, सॉरी, Q by L मल्टीप्लाइड बाय, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है,
इसके अंदर टोटल चार्ज है Q बाय L टाइम्स उसका लेंथ कितना है D, Q बाय L इंटू D, समझ गए, Q बाय L इंटू D। एंड इसका जो डिस्प्ले, ओके, Q बाय L इंटू D होगा, दिस इज द चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dx, समझ गए, डोंट गेट कंफ्यूज, ये dd अलग है। ओके तो इधर से देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ई डी बाय एल इंटेग्रल dx। इंटेग्रल dx इन दिस केस ये पूरे रॉड को यहां से यहां कराना है, तो मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो d हुआ, समझ गए ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज d, तो ये कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। एंड दिस वर्क डन इज गोइंग टू बी इक्वल टू minus QED square by L. Okay, this is the work done one. All right, all right. I hope you understood this part. Now, here's the thing. अगर रॉड यहां तक पहुंच गया, इसके बाद नोटिस करो, इसके बाद जितना फोर्स रीजन 2 पे लगेगा उतना ही फोर्स रीजन 1 पे लगने वाला है। सो दे आर गोइंग टू कैंसल आउट, नो मोर एक्सेलरेशन। एंड उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये जब रॉड ऐसे पहुंच जाएगा, like this, just a moment, I'm going to extend this line. ये जब रॉड जो है, रॉड जब इधर तक पहुंच जाएगा, जब, सॉरी, हाँ, ऐसे निकलेगा ना यहां से, ऐसे निकलेगा यहां से, एंड उसके बाद वो ऐसे जाएगा, इस तरह से, है ना, ऐसे जाएगा। तो इसके बाद यू कैन सी दैट कि फोर्स किधर ज्यादा है, फोर्स ऑन रीजन 2, फोर्स इन रीजन 2, ये F2, और ये फोर्स इन रीजन 1 F1 हियर। इसके बाद तो F2 इज गोइंग टू बी इक्वल, इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन F1। तो एनीवे इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होने वाला है, इस तरफ होने वाला, एंड इट विल कम आउट एनीवे। तो बस हमें यहां तक पहुंचाना है इसको, समझ गया ना, इस एंड को यहां तक पहुंचाना है। तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन दैट हैज हैपेंड हियर, टोटल वर्क डन। तो यहां से टोटल वर्क डन, 3 वर्क डन हैपनिंग, ठीक है। एक ये है, आई विल कॉल दिस, ये फर्स्ट, ये वर्क 1, फिर ये दोनों साथ में हुए, ये 2 एंड ये 3, ठीक है। तो लेट्स ऐड दीज अप। तो टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, अगर लिखूंगा डेल्टा के, तो नेट वर्क डन कितना होगा, इन सबको ऐड करो तो माइनस क्यू ई डी स्क्वायर बाई 12 प्लस क्यू ई डी स्क्वायर बाई 12 माइनस क्यू ई डी स्क्वायर बाई एल, ये टोटल वर्क डन हुआ, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होना चाहिए, इसका v क्या हो जाना चाहिए, 0, ठीक है, यहां तक पहुंचाना। उसके बाद तो ये खुद फोर्स उसको ले जाएगा आगे, तो माइनस हाफ mu स्क्वायर्ड, ठीक है। तो यू कैन सी दैट ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, दिस वन एंड sorry, not this one, these two get cancelled, and ये माइनस माइनस गया, you'll get u is equal to 2qe d squared by ml, the whole root. Okay, so that is the minimum speed that the rod should have, so that it can come out of the complete to both the sections, ठीक है। now इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि what should, if the rod enters with twice the speed, ये जो स्पीड दे रखा है, इस स्पीड का डबल स्पीड से अगर वो एंटर करता है, then with what speed will it emerge out? Now if you look at the symmetry of this motion, entering and exiting, तो both, ठीक है, अगर if it is going to exit, एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, इधर I'll write it here,
कि due to symmetry of this motion, you can say that work done by region 1 would be equal to, या फिर plus, या work done by region 1 would be negative of work done by region 2. देख सकते हो सिमेट्री, जितना डिस्प्लेसमेंट रीजन 1 में हुआ, जो वर्क डन रीजन 1 कर रहा है उतना ही रीजन 2 वर्क कर रहा है, एंड उसका सेंस ऑपोजिट रहेगा. ठीक है, तो दैट इंप्लाइज नेट वर्क डन क्या होने वाला है, is going to be equal to 0. You don't have to calculate anything. So you can see that जिस स्पीड से एंटर करेगा उसी स्पीड से एग्जिट करेगा. तो the rod exits with the same speed it enters. Okay, so in that case, second part of the question में, this is the second part. So second part of the question के हिसाब से, with what speed is it going to emerge out? It is going to be twice u, मतलब 2 root of 2qe d squared by ml. Okay, so that is the problem. This is basically work energy theorem का question होगा. All right, so in this question, a rectangular tank of mass m naught and charge q over it is placed on a smooth horizontal floor. A horizontal electric field E exists in the region. Raindrops are falling vertically in the tank at a constant rate of n drops per second. एक सेकंड में n drops गिर रहे, and mass of each drop is m. तो ठीक है, तो mass that has been added would be what, n into m, right? Now find the time taken by the tank to reach half the maximum speed. Now we do not know what the maximum speed is, so let's calculate that first. Okay, now इसमें देख सकते हैं कि इसमें रेन ड्रॉप्स गिरने की वजह से ये थोड़ा थोड़ा करके भर जाएगा, एंड एट दिस मोमेंट सम टाइम t, at some time t, you can see that, let's say I'll write it here, कि at t is equal to t, at t is equal to t, इसके अंदर कितना पानी भर जाएगा, इसके अंदर कितना पानी भर जाएगा, एक सेकंड में कितना ड्रॉप्स गिरा n, तो t सेकंड्स में कितना ड्रॉप गिरेगा nt. ठीक है, एंड हर ड्रॉप का मास कितना है m, तो ntm, इतना मास इसमें ऐड हो गया. ठीक है, सो व्हाट कैन आई से अबाउट द टोटल मास? सो द टोटल मास, I could write total mass is going to be m naught plus mnt. Okay, this is the total mass at an instant t. All right, now इसमें ध्यान से देखना, इस पे what are the forces acting now at this instant, ये क्योंकि इस पे चार्ज q है, so there is going to be a constant force, there is going to be a constant force QE. इस पे QE फोर्स लगेगा, ऐसे कितना फोर्स लग रहा है, Q into E फोर्स लगेगा. दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स. इस कांस्टेंट फोर्स के वजह से वो आगे राइट साइड की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, राइट साइड की तरफ एक्सेलरेट करेगा, एंड जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, यू कैन इमेजिन, लेट्स टेक वन रेन ड्रॉप. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन रेन ड्रॉप. तो विथ रिस्पेक्ट टू लेट्स से कि अभी इसका स्पीड जो है वो v है, इसका स्पीड कितना है, v है. तो विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेनर या टैंक, इसका स्पीड इस तरफ क्या रहेगा, v. समझ गए ना? तो एंड दिस थिंग इज बीन एडेड इनसाइड द कंटेनर, मतलब मास ऐड हो रहा है, वेरिएबल मास सिस्टम हो गया. सो देयर इज गोइंग टू बी अ थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग. तो इस पे क्या लगने वाला है, thrust force लगेगा, and that thrust force
is simply what? V dm by dt. We know that it is going to be V dm by dt. And you know very well कि हम लोग उसका डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं. If the mass is increasing, relative velocity के along रहेगा, और अगर if the mass is decreasing, relative velocity के opposite रहेगा. You can imagine a rocket में gases नीचे के तरफ जा रहा है, तो गैस के ऑपोजिट उस पर थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ. एंड इसमें टैंक के अंदर पानी भर रहा है, तो पानी का वेलोसिटी, कोई भी एक ड्रॉप उठा लो, हर ड्रॉप का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टैंक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा? थ्रस्ट फोर्स लगेगा. दिस इज द थ्रस्ट फोर्स. ओके, नाउ इसका पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है, इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, एंड जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी इस तरफ बढ़ते जाएगा. तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो यू कैन सी दैट कि थ्रस्ट फोर्स भी बढ़ेगा. यू कैन इमेजिन दैट increase in velocity will increase the thrust force, and hence there will come a time when the net force would be zero, and when the net force becomes zero, we would be maximum. I'll write that when the net force becomes zero, the velocity will be maximum. ठीक है. Now if I write Newton's second law for this particular setup, तो इस पे राइट साइड की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? Q E. लेफ्ट साइड की तरफ कितना लग रहा है? माइनस V टाइम्स dm by dt इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन होगा. व्हाट इज द मास राइट नाउ? मास इज m0 इन प्लस m into n into t into acceleration. Now here's the thing, what is dm by dt? dm by dt is the rate of change of mass. तो मास कितना ऐड हो रहा है पर सेकेंड, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू m into n. देख सकते हो, n drops in 1 second multiplied by mass of 1 drop. ठीक है, या फिर इसको देखो, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, यू जस्ट डिफरेंशिएट दिस, यू विल गेट दिस वन. समझ में आ रहा? ओके, नाउ तो जस्ट प्लग इन दैट वैल्यू, एंड a को क्या लिखेंगे? dv by dt. यू कैन सी दैट यहाँ पे इसको, और आई कुड जस्ट, हाँ, इसको dv by dt लिखना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे? देखो, QE माइनस v इंटू mn is equal to m0 plus mn into t multiplied by dv by dt. समझ गए? तो इधर इसके हिसाब से व्हाट कैन आई से? आई कैन से दैट, क्योंकि v मैक्सिमम मतलब क्या हो गया? dv by dt जीरो या नेट फोर्स जीरो, मतलब dv by dt क्या करना पड़ेगा? dv by dt इज इक्वल टू जीरो कर दो. तो dv by dt जीरो करो तो LHS पूरा गया. तो अपना v का मैक्सिमम वैल्यू जो है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू QE by mn. समझ में आ रहा है? QE by mn. तो वी जस्ट फाउंड द मैक्सिमम वैल्यू, कितने मैक्सिमम स्पीड हो सकता है इस पर्टिकुलर टैंक का. नाउ यू नीड टू फाइंड कि कितने टाइम में हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम स्पीड इज अटेन्ड. हाफ. ठीक है, हाफ ऑफ दिस इज अटेन्ड. तो गोइंग बैक टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको देखो, मैं स्लाइटली रीअरेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना. I can write it like this, dt upon m0 plus mn into t is going to be equal to, क्या आ जाएगा? dv by QE minus mn into v.
You can see the similarity of LHS and RHS. Now all you need to do is integrate them. Now integrate करते हैं तो t is equal to 0 पे what was the velocity of the setup? It was 0. It was at rest. Now you need to calculate the time t when the speed is half of it, half of Vmax. मतलब इसको क्या लिख देता हूं, q e upon 2mn तक का स्पीड चाहिए तुमको, समझ में आ रहा है, ये टाइम चाहिए. Now this is a simple integration. LHS में देखो क्या आ जाएगा, 1 by mn ln of m naught plus mn t divided by m naught is equal to 1 by minus mn. I hope you understood कि v का कोएफिशिएंट को लिखेंगे, इधर t के कोएफिशिएंट को नीचे लिखेंगे, ln of qe minus mn into qe by 2mn whole divided by 0 पुट करोगे तो qe आएगा. Now if you can clearly see कि यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, ये mn कैंसिल हो गया पूरा, ये mn कैंसिल हो गया. एंड जो RHS है, RHS का न्यूमरेटर देखो, इट इज QE by 2. RHS का QE by 2 हो जाएगा, ये वाला mn और ये वाला mn कैंसिल हो गया. QE minus QE by 2 is QE by 2 divided by QE is going to be half. ये ln of half हो जाएगा. This whole thing is going to become half. ये टोटल ये क्या हो जाएगा 1/2. और ये देखो ना माइनस साइन बाहर है, तो इफ यू लुक एट दिस नेगेटिव साइन, नेगेटिव ln of half इट्स गोइंग टू बी ln of 2. तो दोनों तरफ का लॉग भी हटा दूं तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिलेगा. This implies I'm going to jump a couple of steps. M naught plus mn times t upon m naught is equal to 2. What does that tell you? कि t is going to be equal to m naught by mn, and that is your answer. इतना टाइम लगेगा उसको हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करने में, सॉरी हाफ द स्पीड अटेन करने में. Okay, so in this question you can see two small identical balls lying on a horizontal plane are connected by a weightless spring. Okay, this is a weightless spring. One of the balls is fixed to the wall. ये जो wall है उस ये जो wall के साथ इसको fix कर रखा है. ठीक है, this one right here is fixed. The balls are identically charged. मतलब if they are identically charged, let's say कि इस पे इसमें चार्ज Q और इस पे भी चार्ज Q दे देते हैं. ठीक है, and the balls are identically charged, as a result of which the new spring length increases n times. मतलब let's say I'm going to write here, let L be the natural length. ठीक है, therefore new length या फिर at equilibrium length भी बोल सकते हैं, would be what, n times L. okay, n times L बोल रखा है, मतलब इसका नया लेंथ कितना है, n times L है. Determine the ratio of new frequency when the balls are charged to the old frequency when the balls were uncharged. Okay, now when the balls were uncharged, let's say कि इसका जो spring constant है that is K. अगर spring constant K है तो इसका when इधर लिख देता हूं, when uncharged, इसको स्लाइड डिस्प्लेस करूंगा तो ये क्या होगा, ऐसा ऑसिलेट करेगा विथ फ्रीक्वेंसी f नॉट. राइट, ठीक है, तो f नॉट कितना हो जाएगा, इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ k
k by m, आई गेस इसको बताने का जरूरत नहीं, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है ना, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस नाउ, अभी जब इसको इसका सेपरेशन अभी नया हो गया एंड फ्रॉम द न्यू इक्विलिब्रियम लेंथ यू हैव टू डिस्प्लेस इट, ठीक है। नाउ व्हेन यू डिस्प्लेस इट फ्रॉम द न्यू इक्विलिब्रियम लेंथ, ये मान लो कि दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम लेंथ, जस्ट अ मोमेंट, ये मान लो, सॉरी, ये मान लो यहाँ पे आ गया, इस ये नेचुरल लेंथ के इधर से एंड ये नया इक्विलिब्रियम लेंथ से अगर ये जाएगा तो इसका फ्रीक्वेंसी f मान लेते हैं, ऑलराइट। अब यहाँ पे ये कितना, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर सेपरेशन, दिस पर्टिकुलर सेपरेशन वुड बी n into l, कितना, ये टोटल सेपरेशन कितना होगा, I'll just draw this from right here, this total separation is going to be equal to n times l, all right, and ये जो separation था, this particular separation, sorry, I'll just take this up, this particular separation is l, ठीक है, समझ गया ना। अब यहां से फिर तुमने इसको कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस किया, समझ गया ना, इधर से तुमको इसको x डिस्प्लेस कराना है। तो अब देखो कि ये जो पोजीशन है, फ्रॉम दिस पोजीशन, ये दो चार्ज q के बीच का जो सेपरेशन है, व्हाट इज दिस सेपरेशन इक्वल टू, दिस सेपरेशन इज इक्वल टू n into l plus x है, ठीक है। नाउ बिफोर व्हेन अनचार्ज्ड, इधर लिख देता हूं, ऑलराइट, व्हेन सॉरी एट इक्विलिब्रियम, पहले हम लोग को पता है कि हम लोग इक्विलिब्रियम का जहां पे फोर्सेस इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा फोर्सेस इन्वॉल्व है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एट इक्विलिब्रियम, व्हाट कैन यू से, नेट फोर्स ऑन चार्ज q is 0, तो नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज, ये जो पर्टिकुलर चार्ज है उस पे 0 लिख लेता हूं, तो उस पे राइट साइड पे, राइट साइड की तरफ क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि k के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, इनटू q स्क्वायर्ड बाय व्हाट इज द न्यू सेपरेशन, nl plus x the whole square, this is the force, is equal to, now what is the क्या बोलते हैं, द रिस्टोरिंग फोर्स, या फिर उसको रोकने वाला कौन है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना रहेगा, k टाइम्स एक्सटेंशन, इनिशियल लेंथ was l, फाइनल लेंथ is nl, तो extension is nl minus l, okay, this is the extension, all right, you can clearly see here, this is the extension, ये जो extension है, ठीक है। अब this is we can use this, let's call this equation 1, okay, we're going to use this later on. Now at the new position, when slightly displaced, when displaced by x, x के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, you take this direction as positive, you know the drill, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। तो इस पे क्या लिखेंगे अपने, इसका ma मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग, उसका पॉजिटिव फोर्स कौन सा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर्ड बाय व्हाट इज द न्यू सेपरेशन, व्हाट इज द न्यू सेपरेशन राइट नाउ, आई एम सॉरी हियर, एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस शुड हैव बीन जस्ट nl, क्योंकि एट दिस सेपरेशन, दिस सेपरेशन इज nl, राइट, तो nl का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। नाउ हियर इट इज गोइंग टू बी nl प्लस x द होल स्क्वायर, सॉरी अबाउट दैट। तो एट इक्विलिब्रियम द सेपरेशन इज nl, तो nl का स्क्वायर आ जाएगा, एंड व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय x द न्यू सेपरेशन इज nl प्लस x, ओके, इज इक्वल टू k, सॉरी नॉट इक्वल टू, दिस इज द पॉजिटिव फोर्स, राइट डायरेक्शन में ये फोर्स रहेगा, एंड रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहेगा, k टाइम्स
नया लेंथ कितना है, एन एल प्लस एक्स माइनस ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल। ओके, सो दिस इज हाउ यू राइट दिस। अब एक छोटा सा देखना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसका ये जो टर्म है, दिस पर्टिकुलर टर्म, इसको देखो मैं कैसे लिख दे रहा हूं, 1/4 पाई, एक सेकेंड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एन एल का स्क्वायर, एन एल बाहर निकाल लिया, एंड तो बचेगा क्या, 1 + x/nl द होल स्क्वायर, उसको ऊपर लिख दिया ऐसे, 1 + x/nl रेज टू -2, ऐसा लिख दिया, माइनस, इधर देखना क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, इधर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, k इंटू nl माइनस एल माइनस के एक्स, मैंने इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट्स को, ठीक है, दिस इज द स्लाइट रीअरेंजमेंट दैट आई डिड। Now, what is this particular part? This particular part from equation 1. Change कर देता हूँ, I can मतलब rearrange this and replace कर सकता हूँ। तो देखो MA क्या हो जाएगा, MA is going to be equal to K times N L minus L into, अब देखो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, बाइनोमियल, क्या लगा सकता हूँ, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 2x/nl, ओके, माइनस k टाइम्स nl माइनस l माइनस kx, ओके। सो अब देखो, राइट, तो एक सेकंड ना, जस्ट आई एम ड्राइंग दिस बाउंड्री फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस, ओके। अब इसको देखो, आई एम गोइंग टू रीराइट दिस, एम ए इज इक्वल टू, देख सकते हो कि यहां से व्हेन ये दोनों टर्म्स में से, इस टर्म से और इस टर्म से k इंटू एन एल माइनस एल कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या आएगा, k इंटू एन एल माइनस एल कॉमन निकाला, तो यहां पे देखो 1 माइनस 2x/nl -1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, -2x/nl, और लास्ट में क्या बचा, -kx, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट यहां से l कॉमन आ गया, यहां से l कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एम ए इज इक्वल टू, l कैंसिल हो गया ये वाले फर्स्ट टर्म में से, तो के एन इंटू -2x/n होगा, एन एन भी कैंसिल हो गया, एन एल कैंसिल हो गया, बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी -2kx फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लस 2k, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, l कैंसिल, 2kx/n माइनस kx, ठीक है। तो इधर से देखो क्या मिल गया अपने को, इसको स्लाइट ली मैं अगेन रीअरेंज कर देता हूं, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस, कॉमन निकल लेता हूं, 3k, सॉरी 3 माइनस, ये देख सकते हैं 3kx होगा, I won't jump the steps, I'll write it there, माइनस बाहर निकाला तो 3kx प्लस 2kx/n हो जाएगा, सॉरी ये -2kx होगा, ओके। तो यहां से एम ए कितना हो गया, एम ए इज इक्वल टू -3n/2
minus 2 by n times kx. All right, तो यहाँ से देख सकते हैं clearly कि this right here, this particular term is the new oscillation constant. तो यहाँ से f क्या हो जाएगा, एक और सेपरेशन इधर ड्रॉ कर लेता हूँ. तो यहाँ से अपना नया f कितना हो जाएगा, f would be 1 by 2 pi under root of 3n minus 2 into k by nm. ठीक है, this is the new f. So from here, the what you're supposed to find is f by f naught. तो f by f naught is clearly ये सब चीज cancel हो जाएगा and you'll get root of 3n minus 2 by n. Okay, so that is your answer. I hope you all understood this one.